So hello and welcome all in another video tutorial for class 10th. So in today's class we will be talking about another very important life process that is universally present in each and every living organism, and this life process is commonly referred to as the respiration or cellular respiration. So what is this respiration? Which are the organisms which performs the act of cellular respiration? To this cellular respiration is limited to only plant species, or there are certain animal species also that perform the act of cellular respiration. First, respiration is the universal phenomena. That means each and every living organism that is present generally respires as compared, but there are certain other organisms which do not respire, they perform anaerobic respiration. So it is a nearly universal phenomena in nature. So we would be talking about cellular respiration or respiration. What it is, respiration को अगर हम हिंदी में समझें तो केवल एक जो इम्पॉर्टेंट गैशियस एक्सचेंज आपकी बॉडी के अंदर हो रहा है, आप बाहर से क्या ले रहे हैं, ऑक्सीजन ले रहे हैं, एयर ले रहे हैं और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कर रहे हैं, ऑक्सीडेशन ऑफ फूड मटेरियल्स हो रहे हैं जिससे आपकी बॉडी को एनर्जी मिल रही है। उस पूरी प्रक्रिया को, पूरे प्रोसेस को हम बोलते हैं सेलुलर respiration. So let us talk about cellular respiration. What is this cellular respiration? How does cellular respiration takes place? Which is the site for cellular respiration? क्या site होती है, हम इसके बारे में बात करने वाले हैं। अच्छा, cellular respiration also occurs in the case of plant species. Whether it is animal, whether it is plant species, both these species are equally the one which carries out the process of cellular respiration. In plants, along with cellular respiration, photosynthesis also takes place. Plants produces more oxygen than they consume. Plants ज़्यादा ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं, जितनी ऑक्सीजन वो कंज्यूम करते हैं सेलुलर रेस्पिरेशन से उससे 10 गुना ज़्यादा। तो इसीलिए प्लांट्स को बोला जाता है कि वो ऑक्सीजन को प्रोड्यूस करते हैं, ऑक्सीजन को लिबरेट करते हैं बाय द फोटोलाइसिस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इन द प्रोसेस नोन एज फोटोसिंथेसिस। प्लांट्स कैसे करते हैं? फोटोलाइसिस करते हैं, वाटर के मॉलिक्यूल को तोड़ देते हैं और ऑक्सीजन को रिलीज कर देते हैं। दिस इज हाउ प्लांट्स एक्ट। सो लेट अस स्टार्ट विद आवर टॉपिक and let us initiate the process of cellular respiration. So you can focus more towards the board. आप बोर्ड के ऊपर देखने की कोशिश करेंगे सबके सब। So cellular respiration, ये respiration क्या होता है? It is an oxidative process. It is an oxidative process. Oxidative process in which the food is oxidized, in which the food is oxidized to carbon dioxide in the presence of oxygen. So in the presence of oxygen, if food is being oxidized, the process is referred to as respiration. Now there are certain processes in our body that is referred to as metabolism. Sum total of all the reactions which are present in our body. हमारी बॉडी की जितनी भी रिएक्शंस हैं उन सबके टोटल को हम क्या बोलते हैं? मेटाबॉलिज्म बोलते हैं। तो हम देखते हैं मेटाबॉलिज्म, एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म क्या होता है और ये सेलुलर रेस्पिरेशन करता क्या है। सेलुलर रेस्पिरेशन इज द वन that is a nearly universal process that is responsible for the production of ATP molecules. So cellular respiration is a nearly universal process and is responsible for the biosynthesis of ATP molecule and is responsible for the biosynthesis of ATP, for the biosynthesis of ATP. So ATP is being biosynthesized in the process of cellular respiration. This would be much more clear to you now. Okay, I've increased the lighting in the room. Okay. Now cellular respiration produces ATP, biosynthesis of ATP. ATP is referred to as the currency of our body. ATP, which is also referred to as the adenosine triphosphate, is the energy currency of our body. It is this ATP, adenosine triphosphate, which is the energy currency of our body. Is the energy
currency of our body, and catalyzes all metabolic reactions. It is the one that catalyzes all metabolic reactions. So all the different types of metabolic reactions are being catalyzed in the process where ATP is being biosynthesized. Now, what do you mean by metabolism? Sum total of all the biochemical reactions which are present in a cell refers to its metabolism. So when we are going to talk about metabolism, अब देखिए यहाँ पर कुछ चीज समझाने वाली है. मेटाबॉलिज्म के अंदर एनाबॉलिज्म, कैटाबॉलिज्म क्या होता है और सेलुलर रेस्पिरेशन का रोल क्या है. तो देखिए हम बात करते हैं मेटाबॉलिज्म की. यहाँ पर थोड़ी सी बात करते हैं मेटाबॉलिज्म की. Metabolism, sum total of all the biochemical reactions which is present in our body, can be categorized into two parts. One is called as anabolism, another one is called as catabolism. भाई मेटाबॉलिज्म को हम दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं. एक को बोलते हैं हम एनाबॉलिज्म और एक को हम बोलते हैं कैटाबॉलिज्म. What do you mean by anabolism? All the biosynthetic reactions are included in anabolism. सारी की सारी बायोसिंथेसिस जो रिएक्शंस होती हैं उन्हें हम किसमें इंक्लूड कर लेते हैं? एनाबॉलिज्म के अंदर इंक्लूड कर लेते हैं. सारी की सारी कैटाबॉलिक रिएक्शंस जिनमें चीजें टूटती हैं, जैसे आपने खाना खाया, आपने फूड मटेरियल को कंज्यूम किया, अब आपकी बॉडी क्या करेगी? उस फूड मटेरियल को कंज्यूम करने के बाद में उसे यूटिलाइज करेगी. खाना आ गया, इसे अगर आप खा लेते हैं, हाँ खा लिया आपने, तो आपकी बॉडी क्या करेगी? इसे डाइजेस्ट करेगी. So such type of reaction is referred to as catabolism reaction. Plants ले आए हम, इन plants के अंदर हमने light डाली, light is coming on this plant. What this plant is doing? This plant is performing the act of photosynthesis. So this is referred to as anabolic reactions, in which the light energy is producing the carbohydrate molecules in the form of different starch and glucose and other things. So anabolism. What do you mean by anabolism? What do you mean by catabolism? Anabolism refer to all biosynthesis reactions. All biosynthesis reactions that involves biosynthesis of molecules. Biosynthesis of molecules in a cell. In a cell is called anabolism. For example, the process of photosynthesis. Photosynthesis क्या है? Photosynthesis एक एनाबॉलिक रिएक्शन है, क्योंकि फोटोसिंथेसिस के अंदर प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में क्या होता है? ग्लूकोज इज बीइंग बायोसिंथेसाइज्ड. ग्लूकोज इज बायोसिंथेसाइज्ड. सो इट इज एन एनाबॉलिक प्रोसेस. ग्लाइकोजन सिंथेसिस, हमारी बॉडी के अंदर ग्लाइकोजन भी बनता है. एनिमल्स के अंदर लीवर में क्या होता है? फूड मटेरियल स्टोर हो जाता है. किसकी फॉर्म में? ग्लाइकोजन की फॉर्म में. ग्लाइकोजन biosynthesis. When glycogen biosynthesis is going to take place, then this is also an anabolic process. Now what do you mean by catabolic process? Catabolism refers to the degradation pathway. A pathway in which molecules are being degraded is referred to as catabolism. अभी मैंने समझाया था ना, वही रोटी वाला एग्जांपल, जो आपने खा ली है तो आपकी बॉडी के अंदर कैटाबोलिज्म हो रहा है और एटीपी प्रोड्यूस हो रही है. सो कैटाबोलिज्म, it is a biochemical pathway. Biochemical pathway that involves the degradation of biomolecules producing energy, and this is the one which produces energy, or ATP. For example, the process of cellular respiration. सेलुलर रेस्पिरेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसे हम कैटाबोलिक पाथवे कहते हैं, जिसमें मॉलिक्यूल्स टूटते हैं. अब देखिए यहाँ पर ये बड़ा इंपॉर्टेंट है. रेस्पिरेशन क्या है? रेस्पिरेशन इज अ कैटाबोलिक पाथवे in which the molecules are being broken down
Of course, the food material is being broken down, is being oxidized into carbon dioxide in the presence of oxygen molecules. Okay. So cellular respiration is an oxidative catabolic pathway in which the ATP molecules are being produced. So यहाँ पर हमने क्या लिखा है? Cellular respiration. पूरे सेलुलर रेस्पिरेशन में जो भी आप खाना खाते हैं उसका ऑक्सीडेशन ही तो होता है, और वही ऑक्सीडेशन कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, वही मॉलिक्यूल्स कार्बन डाइऑक्साइड की कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है और आपकी बॉडी से रिलीज्ड आउट हो जाता है. दिस इज हाउ सेलुलर रेस्पिरेशन ऑन अ वेरी बेसिक नोट टेक्स प्लेस. इस तरीके से सेलुलर रेस्पिरेशन होता है. अब हमें ये देखना है कि सेलुलर रेस्पिरेशन में क्या क्या होता है. एरोबिक रेस्पिरेशन क्या होता है, एनारोबिक रेस्पिरेशन क्या होता है. Now cellular respiration could be categorized into following two different types. दो प्रकार से हम cellular respiration को categorize कर सकते हैं. One is aerobic, another one is anaerobic. What do you mean by aerobic cellular respiration? Aerobic cellular respiration is a type of cellular respiration which takes place in the presence of oxygen. Anaerobic cellular respiration takes place in the absence of oxygen. So if there is oxygen present, then it is aerobic cellular respiration. If the oxygen is absent, it is anaerobic cellular respiration. Now what is the key difference between the two? दोनों में क्या अंतर है? पहले तो आप थोड़ा सा एक चीज और समझिए, ये रेस्पिरेशन और बर्निंग में क्या अंतर है. एक होता है वर्ड बर्निंग, भाई आप उसी रोटी को या एक कागज को ले आए, उसे आपने आग लगा दी, वो क्या है, बर्निंग. और सेलुलर रेस्पिरेशन क्या है? सेलुलर रेस्पिरेशन में भी ऑक्सीडेशन हो रहा है, बर्निंग में भी ऑक्सीडेशन हो रही है. किसी भी चीज को अगर आप आग लगा रहे हैं, जला रहे हैं, तो उससे क्या निकलेगी, कार्बन डाइऑक्साइड ही तो निकलेगी. कार्बन डाइऑक्साइड निकल रही है, वो भी तो सेलुलर रेस्पिरेशन जैसे ही हो गया. लेकिन सेलुलर रेस्पिरेशन इज अ स्लो ऑक्सीडेटिव स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस एज कंपेयर टू बर्निंग. बर्निंग और सेलुलर रेस्पिरेशन का सबसे बड़ा अंतर यह है, बर्निंग एक फास्ट प्रोसेस है जिसमें एक ही बार में बहुत ज्यादा एनर्जी रिलीज हो जाती है, जबकि सेलुलर रेस्पिरेशन अ स्लो एंड एन इफेक्टिव स्टेप व्हिच कॉजेस द रिलीज ऑफ एनर्जी इन अ स्टेप बाय स्टेप मैनर सो दैट लार्ज एनर्जी कैन बी हार्वेस्टेड इन आवर बॉडी. एक क्वेश्चन है बड़ा इंपॉर्टेंट, हम जरा इसको देखते हैं, उसके बाद में हम सेलुलर रेस्पिरेशन को एरोबिक और एनारोबिक के पार्ट में डिवाइड करेंगे और फिर उसे पढ़ेंगे. यहाँ पर हमारे पास में एक डिफरेंस करने को मिलता है हमें सेलुलर रेस्पिरेशन और बर्निंग के अंदर. आप लोग बोर्ड के ऊपर देख पा रहे हैं, तो मैं यहाँ पर ही इसे डिफरेंस कर दे रहा हूँ. difference in between cellular respiration another one is referred to as burning. सेलुलर रेस्पिरेशन और बर्निंग के बीच में क्या बेसिक क्या अंतर होता है, क्या डिफरेंस होता है सेलुलर रेस्पिरेशन और बर्निंग के बीच में. देखिए सेलुलर रेस्पिरेशन में क्या होता है, इट इज ए स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस. इट इज अ स्टेप बाय स्टेप स्लो प्रोसेस in which the food materials are oxidized. Food materials are oxidized into CO2 and water. यहां पर क्या होता है, it is a fast oxidative process. ध्यान से सुनिएगा, मैं भी डिफरेंस कर दूंगा इनके बीच में बहुत अच्छे से. इट इज अ फास्ट ऑक्सीडेटिव प्रोसेस इन विच मॉलिक्यूल्स आर ऑक्सीडाइज्ड टू प्रोड्यूस large amount of energy. In least time interval. कम समय में ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी को प्रोड्यूस कर देता है, वो क्या है, बर्निंग. अब अगर इन दोनों के बीच में आप अच्छे से डिफरेंस देखना चाहते हैं तो उसी जगह यहां पर देखें, बर्निंग के अंदर क्या होता है और सेलुलर रेस्पिरेशन के अंदर क्या होता है. तो अगर आप बर्निंग के ऊपर बात करते हैं तो बर्निंग तो ऑक्सीडेशन प्रोसेस है ही, तो इसके अंदर क्या है, तुरंत एक जगह पे आपने सब्सटेंसेस को लिया
और इन सब्सटेंसेस को आपने क्या कर दिया, बर्न कर दिया। जब आपने बर्न कर दिया तो काफी सारी फ्लेम्स यहाँ से निकलेंगी, ये फ्लेम्स निकलेंगी और सीधे सीधे आपने लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी इज लॉस्ट, लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड, ऑफ एनर्जी रिलीज्ड, energy released, large amount of energy released is lost in the atmosphere, is lost in the atmosphere. This large amount of energy is lost in the atmosphere. But what happens in the case of cellular respiration? Cellular respiration में क्या होता है? Cellular respiration में क्या होता है, इसे हमें देखने की जरूरत है. What happens in the case of cellular respiration? In the case of cellular respiration, which is an oxidative process, the amount of energy released is small, but in its steps, and that is why it can be harvested. इसे आप ऐसे समझिए, देखिए अगर एक बॉल यहाँ से यहाँ पर गिरती है, देखिए किसी एक छोटे छोटे स्टेप्स में कोई एक बॉल है, वो स्टेप बाय स्टेप मैनर में यहाँ से यहाँ पर गिर रही है, then what is going to happen? Large amount of energy could be extracted out of it. देखिए टोटल एनर्जी जो इस प्रोसेस में निकलेगी और इस प्रोसेस में निकलेगी बराबर है, but in the case of cellular respiration, what is going to happen? It is a slow process, and energy is released in every step. So every step in the biochemical pathway that releases the energy can be used to biosynthesize ATP. मतलब क्या है? हर एक स्टेप जिसमें की एनर्जी निकलती है सेलुलर रेस्पिरेशन में, उस हर एक स्टेप पे, उस हर एक जगह पे आप नई एटीपी की मॉलिक्यूल को बना सकते हैं। इसीलिए इस पाथवे को बोला जाता है सेलुलर रेस्पिरेशन इज अ स्लो ऑक्सीडेटिव स्टेप बाय स्टेप पाथवे इन विच लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी कुड बी इफेक्टिवली हार्वेस्टेड। इसके अंदर आप बहुत ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी को हार्वेस्ट कर सकते हैं। सो small amount of energy released in each biochemical pathway, in each biochemical step can be entrapped to produce ATP molecules, to produce ATP। ये क्या कर सकते हैं, हर एक स्टेप में क्या कर देता है, एटीपी के मॉलिक्यूल को फॉर्म कर देता है, हर एक स्टेप में एटीपी के मॉलिक्यूल को फॉर्म करता चला जाता है और ये एनर्जी करेंसी आपको मिल जाती है। तो ये मेन डिफरेंस होता है सेलुलर रेस्पिरेशन और बर्निंग में। अब हम बात करते हैं सेलुलर रेस्पिरेशन में एरोबिक ऑर्गेनिज्म और एनारोबिक ऑर्गेनिज्म के बारे में। तो एरोबिक ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं, एनारोबिक ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं? एरोबिक ऑर्गेनिज्म वो है जो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ही रेस्पायर कर सकते हैं, और एनारोबिक ऑर्गेनिज्म कौन से हैं? एनारोबिक ऑर्गेनिज्म वो होते हैं जो ऑक्सीजन के एब्सेंस में भी रेस्पायर कर लेते हैं। तो नाउ वी आर डिवाइडिंग द ऑर्गेनिज्म इनटू टू डिफरेंट टाइप्स, एरोबिक एंड एनारोबिक। ओके, मैं चाहता हूं कि आप इस पार्ट पे फोकस करें बोर्ड के, ताकि आप लोगों को ज़्यादा अच्छा समझाया जा सके। तो मैं थोड़ा सा फोकस चेंज करके इस पार्ट के ऊपर करता हूं, ताकि आप लोगों को साफ साफ ये दिखाई दे। अदरवाइज कुछ स्टूडेंट्स की कंप्लेंट रह जाती है, सर अच्छे से नहीं दिखा। सो वी आर गोइंग टू बी टॉकिंग अबाउट सेलुलर रेस्पिरेशन। सेलुलर रेस्पिरेशन processes. There are two different types of processes that occurs in the case of cellular respiration. One is referred to as aerobic, another one is referred to as anaerobic. So one is aerobic, another process is referred to as anaerobic. Aerobic. Now aerobic type of cellular respiration takes place only in the presence of oxygen. Takes place only in the presence of oxygen. In the presence of oxygen. Just a minute. Presence of oxygen.
ये हमेशा ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ही होगा। एनारोबिक प्रोसेस टेक्स प्लेस इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, टेक्स प्लेस इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन की एब्सेंस में होगा। ओके तो अगर हम बात करते हैं एरोबिक प्रोसेस की, तो एरोबिक प्रोसेस के अंदर होता क्या है, द फूड मटेरियल्स आर बीइंग कंप्लीटली ऑक्सीडाइज्ड। फूड मटेरियल्स को हम क्या कर देते हैं, कंप्लीटली ऑक्सीडाइज कर देते हैं, और कंप्लीटली ऑक्सीडाइज करके हम क्या बना लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। इसको हम बोलते हैं भाई एरोबिक सेलुलर रेस्पिरेशन। एनारोबिक सेलुलर रेस्पिरेशन में क्या होता है, इन द केस ऑफ एनारोबिक सेलुलर रेस्पिरेशन व्हाट इज गोइंग टू हैपन, the food material is going to undergo partial oxidation. Partial oxidation होता है food material, only partial oxidation is going to take place. Partial oxidation of food material occurs, of food materials occurs. Less number of ATPs here, there is complete oxidation of food material, complete oxidation of food material, oxidation of food material। यहां पर देखिए कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ फूड मटेरियल होता है। लेस अमाउंट ऑफ एटीपी इज प्रोड्यूस्ड, अमाउंट ऑफ एटीपी इज प्रोड्यूस्ड, बहुत कम एटीपी प्रोड्यूस होती है, अप्रोक्सीमेटली 2 एटीपी बनती है पर मॉलिक्यूल, पर ग्लूकोज मॉलिक्यूल, ठीक है, 2 एटीपी बनती है ग्लूकोज से। यहां पर हाई अमाउंट ऑफ एटीपी, हाई अमाउंट ऑफ एटीपी इज प्रोड्यूस्ड, ज्यादा अमाउंट ऑफ एटीपी बनाई जाती है, इज प्रोड्यूस्ड। कितनी एटीपी बनती है भाई, इसमें तो लेस अमाउंट ऑफ एटीपी बन रही है, इसमें ज्यादा अमाउंट ऑफ एटीपी बन रही है। कितनी एटीपी बन रही है इसके अंदर, अप्रोक्सीमेटली 36 to 38 number of ATP molecules are produced per molecule। इतनी एटीपी बनता है, इतनी एटीपी बनता है। इसके रिएक्शंस को अभी हम देखने वाले हैं। यहां पर जो ग्लूकोज होता है C6H12O6, ये क्या है भाई, ये ग्लूकोज है। इस ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन होता है। जब इस ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन होता है तो ऑक्सीडेशन होने के बाद में क्या बन जाता है, ये बन सकता है, अगर मैं बात कर रहा हूं प्लांट स्पीशीज की, तो प्लांट स्पीशीज में क्या बन सकता है, प्लांट या फंगस स्पीशीज में ये इथेनॉल के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, इथेनॉल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। नाउ इथेनॉल कैन बी रिटन इन इट्स मॉलिक्यूलर फॉर्म में लिख देता हूं C2H5OH, दैट इज इथेनॉल plus carbon dioxide is being produced. This process is referred to as ethanolic fermentation. इस process को हम क्या बोलते हैं, ethanolic fermentation, ethanolic fermentation। Okay, this is ethanol। Now this glucose molecule can also be converted into lactic acid। लैक्टिक एसिड, देखिए लैक्टिक एसिड एक कायरल कंपाउंड है, मतलब इसकी चारों जो ग्रुप्स होते हैं वो चारों डिफरेंट होते हैं। कौन कौन से होते हैं, OH, H, CH3, COOH। भाई ये क्या बन गया, लैक्टिक एसिड बन गया। लैक्टिक एसिड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, ये किसके अंदर होता है, इस फर्मेंटेशन प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। ओके, थोड़ा सा जूम आउट करता हूं ताकि आप लोगों को अच्छे से दिख जाए। इस वाले एरिया के ऊपर थोड़ा सा फोकस करते हैं हम लोग। जस्ट सेकंड, आई एम एडजस्टिंग द कैमरास, जस्ट अ सेकंड। ओके, नाउ इट्स फाइन। यहां देखेंगे आप, ये क्या बन गया, लैक्टिक एसिड, इसे हम क्या बोलते हैं, लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। This is referred to as lactic acid fermentation. This takes place in the presence, in the case of plants, in the case of fungus. This takes place in the case of lactic acid fermentation in the case of animals.
Now there is could be another different types of an oxidation that could take place in the case of aerobic respiration. In the case of aerobic respiration, एरोबिक रेस्पिरेशन में क्या होगा? क्या आप लोग एरोबिक रेस्पिरेशन को देख पा रहे हैं? नहीं देख पा रहे हैं? थोड़ा सा चेंज कर देते हैं हम. अच्छा ठीक है, चलिए मैं इसी के अंदर एरोबिक रेस्पिरेशन बना देता हूं. ये एरोबिक का पार्ट बना रहा हूं मैं, तो मैं इसे अलग कलर से बना दे रहा हूं, रेड कलर से बना दे रहा हूं ताकि आप समझ पाएं. अगर इसी का नाम एरोबिक रेस्पिरेशन कर रहा था तो देखिए एरोबिक अगर मैं कर देता हूं एरोबिक, if I am going to perform the aerobic respiration, then the process of aerobic respiration, the glucose is going to be completely oxidized. So this glucose will produce 6 CO2 plus 6 H2O plus H2O and will produce large amount of energy. और ये क्या दे देगा? बहुत ज्यादा अमाउंट में एनर्जी को प्रोड्यूस कर देगा. So this is how the process takes place and the ATP is being produced. तो या तो इथेनॉल बन सकता है, लैक्टिक एसिड बन सकता है, या एरोबिक रेस्पिरेशन हो सकता है. एरोबिक में ये एनर्जी बना देगा, कार्बन डाइऑक्साइड बना देगा, वाटर बना देगा. एनारोबिक रेस्पिरेशन में ये देख सकते हैं आप इथेनॉल बन रहा है या लैक्टिक एसिड बन रहा है. इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? फर्मेंटेशन भी बोलते हैं. सो फर्मेंटेशन इज द प्रोसेस ऑफ एनारोबिक रेस्पिरेशन बेसिकली व्हिच टेक्स प्लेस इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स. तो यहाँ पर आपने देखा कि सेलुलर रेस्पिरेशन में एरोबिक क्या होता है, एनारोबिक क्या होता है, किस तरीके से ऑक्सीडेशन होता है, किस तरीके से ऑक्सीडेशन ऑफ फूड मटेरियल होके हमें एनर्जी प्राप्त होती है. अब हमें देखना है अगला प्रोसेस जिसे हम बोलते हैं फर्मेंटेशन. सो बेसिकली व्हाट इज फर्मेंटेशन? आपने नाम बड़ी बार सुना होगा क्योंकि सबसे ज्यादा प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ बायोलॉजी फर्मेंटेशन टेक्नोलॉजी में होती है, जिससे बनती है ब्रेड, जिससे बनती हैं हार्ड ड्रिंक्स सच एज बियर, अल्कोहल्स एक्सेट्रा, जिससे बनते हैं केक्स, जिससे बनती हैं पेस्ट्रीज, जिससे बनती हैं सॉफ्ट ड्रिंक्स आल्सो. So all these different types of food industry is actually based upon the process of fermentation. So basically what is this fermentation that takes place? Fermentation is the partial oxidation of food material in the absence of oxygen molecule. So here these two processes are basically fermentation. फर्मेंटेशन से ही तो इथेनॉल बन रहा है, फर्मेंटेशन से ही लैक्टिक एसिड बन रहा है. लैक्टिक एसिड कहाँ बनता है? दही के अंदर, कर्ड के अंदर, विद द हेल्प ऑफ द स्पीशीज लैक्टोबैसिलस. आपने एक नाम सुना होगा याकुल्ट का. याकुल्ट है क्या? इट कंटेन्स लैक्टोबैसिलस शिरोटा. लैक्टोबैसिलस शिरोटा नाम का एक बैक्टीरियल स्ट्रेन होता है जिसे शिरोटा नाम के साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया था और उन्हीं ने आगे चल के याकुल्ट नाम की कंपनी को बना दिया. तो उनका कहना क्या है? उनका कहना सिर्फ इतना है, आप बीमार कब होते हैं? जब हार्मफुल बैक्टीरिया आपकी बॉडी के अंदर पहुंच जाते हैं. तो हार्मफुल बैक्टीरिया को भगाने के लिए क्या करो? एक दूध का मिक्सिल का एक मिक्सचर लो और उसे पी जाओ. तो मिल्क के अंदर क्या होता है? लैक्टोबैसिलस. लैक्टोबैसिलस बॉडी में जाएगा, हार्मफुल बैक्टीरिया को लड़ेगा, उसे भगा देगा और यूजफुल बैक्टीरिया आपकी गट में रहेंगे, आप हेल्दी हो जाएंगे. सिंपल यही तो टेक्निक हमारे एंसेस्टर्स भी यूज करते थे. क्या बोलते थे? पुराने समय से भी, पुराने समय में भी इंडिया के अंदर स्पेशली इन मथुरा रीजन्स कर्ड, मिल्क प्रोडक्ट्स वर बीइंग एक्टिवली कंज्यूम. पुराने जमाने के लोग बहुत ज्यादा मिल्क प्रोडक्ट को कंज्यूम करते थे और वो मिल्क प्रोडक्ट को जब बहुत ज्यादा कंज्यूम करते थे तो उनके बैक्टीरिया उनके गट में क्या चले जाते थे? लैक्टोबैसिलस स्पीशीज. और हार्मफुल बैक्टीरिया उनकी बॉडी के अंदर एंटर नहीं कर पाते थे, जिसकी वजह से वो लंबे समय तक अलाइव रहते थे. लॉन्जेविटी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रीजन था हाई कंजप्शन ऑफ मिल्क एंड मिल्क रिलेटेड प्रोडक्ट्स. ओके, सो नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट फर्मेंटेशन. फर्मेंटेशन क्या है? Fermentation. It is a partial oxidative process. It is a partial oxidative process. Partial oxidative process in which the food materials, it is visible to you all? No, it's not. Okay, it is visible. In which the food materials are partially oxidized to aid in the process of digestion. तो देखिए, अगर आपको डाइजेशन को इंप्रूव कराना है
तो आपने पार्शियली डाइजेस्टेड फूड ले लिया, जिसे आपने डाइजेस्ट करके खाया है, पार्शियली डाइजेस्टेड फूड मटेरियल है, उसे जब आप कंज्यूम करेंगे तो इफेक्टिवली डाइजेस्ट हो जाएगा, ब्रेड बहुत आसानी से डाइजेस्ट हो जाएगी। यू वुड हैव हर्ड अबाउट डोनट्स, पाव जिसे बोलते हैं, ब्रेड पाव, जो अपने ये महाराष्ट्र की तरफ ज़्यादा मिलता है। All those things can be effectively digested. So fermented food is said to be the best food in the case of a person suffering from a disease or infection of the intestine. Fermented food को best food माना गया है। Next आप लोग fermented food के अंदर वो भी पढ़ते हैं, डोसा, इडली, all these are different types of fermented food material, जिनके अंदर क्या कर लिया जाता है, क्या मदर फादर से आपने क्या सुना होगा, खमीर कर दिया जाता है। दैट मीन्स उसके अंदर फर्मेंटेशन हो जाता है, और फर्मेंटेशन होने के बाद में क्या आ जाता है, उसके अंदर कुछ बबल्स से आ जाते हैं। दैट इज बिकॉज ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ब्रेड की अगर आपने शेप देखी होगी तो ब्रेड के अंदर भी क्या होते हैं, कई कैविटीज सी होती हैं उसकी सरफेस पे। ब्रेड की सरफेस प्लेन नहीं होती, उसके अंदर कई सारी कैविटीज होती हैं। वो कैविटी कैसे बन गई, वो छेद कैसे बन गए, क्योंकि उसके अंदर से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकली। ऐसे ही बनता है केक भी। तो केक के अंदर और इन सारे प्रोसेस के अंदर, फर्मेंटेशन के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलती है, वहां पर थोड़ा बहुत इथेनॉल बनता है, या लैक्टिक एसिड बनता है, या कुछ और एसिड्स बनते हैं, एंड दैट इज व्हाई दे प्रोवाइड स्पेसिफिक टेस्ट टू द फूड मटेरियल। इफ यू वुड हैव टेस्टेड कर्ड, जो आप दही को देखते हैं तो दही हल्का सा खट्टा होता है। वो क्यों होता है, दैट सो टेस्ट ऑफ द कर्ड इज बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ लैक्टिक एसिड, इसी की वजह से वो हल्का सा खट्टा होता है। Ethanol is used in the case of beverage industry. This is for all for today's class. In the next lecture we will be talking about how does the process of respiration take place. हम अपनी बॉडी से समझेंगे कि किस तरीके से हम रेस्पायर करते हैं, नोस्ट्रल्स क्या होते हैं, किस तरीके से बॉडी के अंदर एयर का ट्रांसमिशन होता है, कैसे हमारे लंग्स तक जाता है, और लंग्स के बाद में कैसे हमारे हर एक सेल तक ये ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट किया जाता है इन द प्रोसेस ऑफ सेलुलर रेस्पिरेशन। प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। इन केस यू हैव एनी क्वेरी you can always write to me, you can WhatsApp me, you can comment me, you can call me up, and please try to post as many number of queries as you can. Always keep solving your MCQ books. Best of luck, and we will be meeting soon in our next video tutorial. Best of luck.